On the day of Gudi Padwa and Ugadi, the first day of Hindu New Year, Prime Minister Narendra Modi also made new beginnings. He visited Nagpur in his first visit since taking over as the Prime Minister. He went to Smriti Mandir, underlining the connection between the BJP and the RSS, then paid homage to the founding fathers of RSS. Visuals showed Prime Minister bowing down at the statue of RSS founder Dr. Hedgewar. The memorials of Hedgewar and Golwalkar are at Smriti Mandir in Resham Bagh area in Nagpur. Prime Minister then went on to meet Mohan Bhagwat at the site and was accompanied by BJP leaders, Union Minister Nitin Gadkari and Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis. Both leaders from Nagpur who enjoy a strong, steadfast support from the RSS as well. At Smriti Mandir, Prime Minister signed the visitors' book, expressing admiration at the organization's influence on Indian culture and nationalism. In a handwritten note that was signed by him, Prime Minister said that he felt overwhelmed to be at Smriti Mandir as it inspires lakhs of volunteers to work for service of the nation. PM's next stop was Diksha Bhumi, where he honored Dr. Ambedkar. The site holds significance in Buddhism as it was here that Dr. Ambedkar embraced Buddhism back in 1956 along with thousands of his followers. Prime Minister then went on to lay the foundation stone for Madhav Nethralaya Premium Center, a new extension building of Madhav Nethralaya Eye Institute and Research Center. Prime Minister heaped praises on the contributions of RSS, saying that the organization had always worked for the unity of the country. इसी साल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गौरवशाली यात्रा का 100 वर्ष भी पूरे हो रहे हैं। आज इस अवसर पर मुझे स्मृति मंदिर जाकर पूज्य डॉक्टर साहब और पूज्य गुरुजी को श्रद्धांजलि अर्पित करने का सौभाग्य मिला। हमारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी एक ऐसा संस्कार यज्ञ है जो अंतर्दृष्टि और बाह्य दृष्टि दोनों के लिए काम कर रहा है। बाह्य दृष्टि के रूप में हम माधव नेत्रालय को देखते हैं और अंतर्दृष्टि ने संघ को सेवा का पर्याय बना दिया है। विकसित भारत के लिए सबसे जरूरी है कि हम उन बेड़ियों को तोड़ें जिनमें देश उलझा हुआ था। आज हम देख रहे हैं भारत कैसे गुलामी की मानसिकता को छोड़कर आगे बढ़ रहा है। गुलामी की निशानियों को जिस हीन भावना में 70 वर्षों से डोया जा रहा था, उनकी जगह अब राष्ट्रीय गौरव के नए अध्याय लिखे जा रहे हैं। हमारे यहां कहा गया है, परोपकाराय फलंति वृक्षाः, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकारार्थमिदं शरीरम। हमारा शरीर परोपकार के लिए ही है, सेवा के लिए ही है। और जब ये सेवा संस्कारों में आ जाती है तो सेवा ही साधना बन जाती है। किसी भी राष्ट्र का अस्तित्व पीढ़ी दर पीढ़ी उसकी संस्कृति के विस्तार, उस राष्ट्र की चेतना के विस्तार पर निर्भर करता है। हम अपने देश का इतिहास देखें तो सैकड़ों वर्षों की गुलामी, इतने आक्रमण भारत की सामाजिक संरचना को
मिटाने की इतनी क्रूर कोशिशें, लेकिन भारत की चेतना कभी समाप्त नहीं हुई। उसकी लौ जलती रही। Now remember, just before Prime Minister's visit, there were posters of "Ek Hai Safe Hai" that came across all over Nagpur in anticipation of that historic visit. The clear message being sent out to everyone was that irrespective of the opposition would like to think, BJP and RSS, the party and the Parivar stand united in their commitment to the cause of taking India ahead. But this occasion gave the opposition several other opportunities to take political pot shots at the BJP as well as RSS. Listen in. लेकिन आज मोदी जी जाएंगे संघ मुख्यालय में, अच्छी बात है। 10 साल में नहीं गए, प्रधानमंत्री बनकर 10 साल हो गए। मोदी जी ने संघ से दूरी रखी थी, एक दीवार थी, लेकिन अब लोकसभा में संघ के कार्यकर्ता सक्रिय नहीं और महाराष्ट्र में सक्रिय, तो उनका परिणाम जरूर दिखा है हमें। तो जरूरत के मुताबिक प्रधानमंत्री जी अपना रूप बदल लेते हैं। आरएसएस के लिए तो वो चुनाव के पहले नड्डा साहब ने कहा था कि अब हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, बीजेपी का सांगठनिक ढांचा बहुत मजबूत हो गया है। लेकिन मुझे लगता है उसके बाद एहसास हुआ होगा कि 240 सीटों पर बीजेपी रुक गई, तो अब फिर से आरएसएस को मिला के या उनको खुश करके या उनके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। ठीक है, उनका तो आरएसएस के दफ्तर में जाना कौन सी खबर है। आदमी अपने घर जाता है तो कोई खबर थोड़ी है। तो आप जाते होंगे प्रधानमंत्री, भाई ऐसे भी संघ एक तरीके से हम तो मानते हैं सरकार चलाता है, तो गए होंगे वहां कोई दिशा निर्देश लेने। कोई बहुत बड़ी खबर नहीं है, ना ही कोई ऐसी चीज है जिसपे कोई टिप्पणी की जरूरत है। अगर वो बाबा साहब अम्बेडकर की भी जगह जा रहे हैं तो मैं ये पूछना चाहूंगा, संघ के और संघ से संबंधित संस्थाओं ने तो उनके बनाए हुए संविधान को कूड़ा कर दिया था, कहा था इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। या संघ के लोगों का या स्वयं प्रधानमंत्री का क्या विचार है, कभी इन चीजों पर भी वो बात कर लें। देखिए, बंगला में एक है, दाए पोड़ले बेड़ा लो गाछे उठे। जब जरूरत पड़ते हैं तभी बिल्ली भी गाछ के ऊपर चढ़ जाते हैं। जरूरत पड़ा तो गाछ के ऊपर चल पड़ा है, उससे नहीं होगा। भारत का जनता भाजपा को रिजेक्ट कर रहा है। 12 साल के बाद में नरेंद्र जी मोदी साहब वहां पे जा रहे हैं और मुझे लगता है कि भाजपा को अभी पता चल गया कि हम लोग चुनाव आरएसएस की वजह से जीता था। सवाल रहा कि अगर मोदी साहब जा रहे और परसों के दिन जो उन्होंने सौगादे मोदी जो शुरू किया है, तो इसका मतलब कि आरएसएस का विचारधारा में कुछ बदल होगा। जो 100 साल में विभाजन की बात होती थी, अब जोड़ने की बात आगे हो और देश खुशहाली से आगे बढ़े, ये हम अपेक्षा रखेंगे। इससे ज्यादा